Khawatine wa Hazrat, welcome to another episode of SMHZ Baithak live. Thank you for joining today. It's 11:30. Last time जो 2-3 episodes हुई थी उसमें जो 2-3 lives हुए थे उसमें बहुत ज़्यादा questions आ रहे थे about career, about मुझे ये कोर्स करना चाहिए, ये कोर्स नहीं करना चाहिए है, इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस बिज़नेस में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए. तो आई थॉट कि आई विल एग्रीगेट ऑल ऑफ दैट इनटू टुडेज लाइव सेशन and then you guys can answer send all the questions or the comments that you have, and then we'll do all of them today and then we'll move on because ये बहुत recurring questions होते हैं. Before I start that though, I was just actually मैं ये कर रहा था live की तैयारी and I came across a very very fascinating video. This is a topic for another day altogether, but because it's just come up, I would love to mention it for you guys कि आप जाके देखें और you learn just an incredible amount about what is going on in the world. किस तरीके से जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, which is going to completely redesign the way that our future looks. It is मैंने earlier this year there was a very famous speech by the Russian President Vladimir Putin, जो कि मैंने अपनी पॉडकास्ट पे शेयर की थी और I asked people to watch it as well. But there is a new one that came out yesterday. It is around 25-30 minutes की speech है जिसमें he outlines a sort of world order that he imagines. He also talks about how he thinks कि जो current global north है वो किस तरीके से दुनिया को कंट्रोल करती रही है और किस तरह से वो चीज़ अब ब्रेक होगी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स फैसिनेटिंग, देयर इज जस्ट एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ इनसाइट. Russia is one of the great powers today, and it's interesting to hear what their president thinks, because wo eventually will become the basis of a lot of the changes that we're going to see in the coming years. Let me just sort of quickly show you guys to the video. This is so this is the video. It's obviously he was speaking in Russian. So he was speaking in Russian and रियल टाइम पे वो ट्रांसलेट हो रही थी. आई एम गोइंग टू लिंक दिस वीडियो एज वेल ताकि आप लोग उसको देख लें. बट बेसिकली अराउंड 25-35-40 मिनट मार्क तक ही गिव्स अ स्पीच and then he does a question and answer with the audience, and he talks about a lot of things, about China, about one belt one road, about India rising and so on and so forth. and आपको उससे एक चीज़ समझ आएगी कि जो पाकिस्तान में इमरान खान का राइज था, जो इंडिया में मोदी का राइज था, जो ओवरऑल दुनिया भर में इस तरह के लीडर्स इमर्ज कर रहे हैं और फिर उसके ख़िलाफ़ पुशबैक भी हुआ. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राइज था और उसके ख़िलाफ़ पुशबैक भी हुआ, जो आपकी हार्डकोर सॉर्ट ऑफ जिसको आप स्टेटस को कह लें. बट इट सीम्स लाइक कि देयर इज़ ए न्यू वर्ल्ड इमर्जिंग that is going to break the sort of, for lack of better word, hegemony of the last powerful world order. And as that is going to happen, more and more fringes, जैसे कि इमरान खान in my opinion was a fringe, was not part of the system, was and one of the reasons why the system reacted was because he was also उसको वो लोग word use करेंगे too, I don't know what the word would be, but too difficult to manage, right? वो जो too difficult to manage वाले लोग हैं, जो ट्रंप है, जो इमरान खान है, जो मोदी है, which we see what's happening with Canada and India. इस तरह के लोग eventually will gain a lot more prominence in the coming years. That is my opinion, and I think this speech really backs that up. Anyways, I'm gonna quickly sort of share that link so that if you guys are interested, you can check it out as well. Before we go forward, just to do a quick test, can you guys see this properly? Is the quality all right? And then can you hear me properly? Is the quality of audio all right? And then lastly, can you hear this sound?
ये तीनों चीज़ें मुझे बता दीजिएगा। उसी के साथ साथ एक साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, वुड यू बी ओपन फॉर डूइंग दिस लाइव एट 11 इंस्टेड ऑफ 11:30? आई थिंक मोर पीपल कुड पोटेंशियली ट्यून इन इफ दैट हैपन्स। थैंक यू। मैं आज एक्चुअली आई वाज स्पीकिंग टू हमना एंड शी सजेस्टेड that we should be doing this at 10:30 instead of 11:30. She believes that 11:30 is actually too late for most people, particularly on weekdays, that is Monday, Wednesday and Friday. Even though today is a Friday and so people should be theoretically available. But anyways, so let me know what your opinion is, whether it should be 10:30 or it should be 11:30. मुझे ना सिर्फ टाइम लिख के भेज दें कि 10:30 या 11:30 ये लिख के भेज दें। इट विल रियली हेल्प मी। Muzal bhai, do you think our education is far behind than global quality? That's why there's a big difference between academia and industry, and why we characterized universities in best, good and fine. Confusing question, but अगर मैं पहली लाइन की बारे में बात करूँ, do you think our education is far behind than global quality? That's why there's a big difference between academia and industry. So पहली statement ये है कि जी education is far behind than global quality. I completely agree with that. अच्छा, इसमें आपने ज़ाहिर स्केल करना होगा. If you're comparing to, let's say, developed world, obviously our quality of education is really bad. If you will, for example, obviously compare this to Africa, we'll probably have fairly good level of education in the top tier of our universities. Even Asia में भी अगर आप जाए ना, तो बहुत सारी ऐसी countries हैं जो कि developing हैं, वो भी उनकी mix and match ही होगी. I wouldn't say कि जी हमारी उनसे on par नहीं है. What I would agree is कि हम ज़्यादा universities को देखते हैं और कहते हैं कि हमारी university education बहुत ख़राब है. मुझे लगता है कि हमारी university education is okay. They have to be extra good because हमारी जो primary, secondary and high school education है वो they're just doing a very very crappy job. Like majority of your जो standard उससे आते हैं ना, इंटर वाले राउट से, वो वाली एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में it's really really bad. It does not allow for critical thinking, it does not allow for sort of design thinking or problem solving. और अगर वो बेस स्ट्रॉन्ग हो तो ऑटोमेटिकली आगे वाली एजुकेशन जो है ना, वो जैसी भी हो तो बच्चे अपना खुद फिगर आउट रास्ता निकालना सीख जाते हैं. बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि इट इज़ दैट एजुकेशन, द अर्ली ईयर्स एजुकेशन, दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. पहली बात तो ये आधी पॉपुलेशन को एजुकेशन मिल ही नहीं रही, और जिनको मिल भी रही है वो इतनी हाफ एस्ट किस्म की मिल रही है कि आई डोंट नो हाउ दे विल कम्पीट इन दी एज ऑफ AI. ऑब्वियसली अगेन मैं टॉप लेट्स से 5-7-10% की बात नहीं कर रहा, बट वी डू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 250 मिलियन, जिसमें से ऑलमोस्ट 50 to 60%, that is around 120 to 140 million people, are currently under the age of 30, with almost 40%, which is I would say 100 million under the age of 18. That essentially means that they are all students जिन्होंने इवेंचुअली वर्क फोर्स पे आना है. तो अगर हम उनकी एजुकेशन को फिक्स नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होंगे. आगे वाले ऑब्वियसली जो आपने बात की, मैंने यूनिवर्सिटी का आंसर आपको दे दिया. वाई वी कैरेक्टराइज यूनिवर्सिटीज़, इसका मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. यू कैन सेंड अनदर क्वेश्चन. एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री में जो एक बिग डिफरेंस है, वो इसका ताल्लुक इस चीज़ से कुछ भी नहीं है. इसका ताल्लुक बड़ी सिंपल सा ये है कि HEC जो कि हमारी हायर एजुकेशन कमीशन है, दिस इज़ माय ओपिनियन, दे मेड अ वेरी स्टूपिड पॉलिसी ऑफ इंश्योरिंग कि जी पहले उन्होंने क्या किया कि जोग लोगों को ना उन्होंने PhDs के लिए बाहर भेजना शुरू कर दिया. मसला ये होता है कि डिमांड एंड सप्लाई होती है. पाकिस्तान डिड नॉट हैव इनफ डिमांड टू एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ दी सॉर्ट ऑफ PhDs दैट केम इन. इससे पहले ये होता था, बिफोर 2005, आपकी इंडस्ट्री का जो बंदा होता था वो साथ जो है ना कोई बेसिक कोर्सेज ही पढ़ा रहा है. कंप्यूटर साइंस की अगर बात कर लेना तो मेरे भाई उस टाइम के ऊपर साथ काम भी कर रहे होते थे, साथ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ा दिया या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ा दी. अब वो यंग लोग होते हैं, वो इंडस्ट्री में होते हैं, वो साथ जिस तरह वो पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, वर्सेस के आपने कहा कि जी सिर्फ PhD पढ़ा सकता है. तो PhD जो था वो कौन रह गया PhD? जाहिर है जो एनीवन हु वाज स्मार्ट इन ऑल ऑफ दिस quickly got jobs and grew in the private sector. People who eventually went into academia were people जिनको इंडस्ट्री से ज़्यादा ना लगाव था, ना इंटरेस्ट था, ना समझ थी, और वो एकेडेमिया में चले गए और eventually वही वापस आए और उनको आके नौकरियाँ आपने दे दी. So these are people who are disconnected from the industry, and that is where the convergence really started to happen. मुझे पर्सनली ये लगता है कि there is no reason to gatekeep education, particularly bachelor level education, to masters or PhD graduates. There is absolutely no requirement for that. An average guy
जो कि बड़े अच्छे ग्रेड्स के साथ लेट्स से फास्ट से बैचलर्स कंप्लीट करता है, 3-4 साल इंडस्ट्री में गुजारता है, वो बहुत ईजिली आगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के कोर्सेज आके पढ़ा सकता है। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब उस एजुकेशन में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है रिसर्च की या इसकी या उसकी। आपने PhD एम्बेड करने हैं फॉर मास्टर्स एजुकेशन, फॉर PhD एजुकेशन, आपने रिसर्च के लिए एम्बेड करने, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर, बट देयर वाज नो रिक्वायरमेंट फॉर दिस एंड आई थिंक दैट इज रियली क्रिएटेड अ वेज बिटवीन द इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया। एनीवेज, तीनों सेट हैं बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक। ते थंग दा लाओ, ढंग दा लाओ, ते ढंग दा लाओ यार। ये एक्चुअली आई यूज दी जो स्टैंडर्ड जेनेरिक इसमें रोडकास्टर में आता है, यूज़ दैट। आई कैन रिप्लेस दैट, आई सी कि उसको मैं क्या कर सकता हूँ। आई एम गोना डू अ फ्यू थिंग्स, आई स्टिल हैव टू सिट विद माय टीम, ताकि मैं थंबनेल्स फिगर आउट करनी है, मैंने कुछ एनिमेशंस वगैरह इसके ऊपर फिगर आउट करनी है जो स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, एंड देन आई हैव टू फिगर आउट दिस एज वेल, जिसको मैं इवेंचुअली चेंज कर दूंगा। आई मे बी हैव लाइक a unique music जो कि TBT नहीं, बट जो कि इस शो के लिए हो, so maybe we can have that as well. Not gonna lie, video quality is much better than the Dubai studio. Is there a particular reason though? हसन डोकर साहब, एक तो इसका मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि the light that we're using, this is a different light, so this just वो flat नीचे फेंकती है versus जो वहाँ वाली थी वो bulb थी। I'm gonna change that light. I have this sort of a light there as well. I'm gonna change that and try that out. जो ज़्यादा important चीज़ है, आपको मेरा face glow होता हुआ नज़र आ रहा होगा, that is because background is blue. Blue is a complementary color to orange. आपने film posters देखे होंगे, they're always blue and orange. मैं quick आपको इसकी demonstration भी दिखा देता हूँ just to illustrate my point. Film posters. सो जब आप जाते हैं ना, आप देखेंगे कि फिल्म पोस्टर्स जनरली ज़्यादा ग्रीन्स, ऑरेंजेस एंड ब्लूज़ की तरफ ग्रेविटेट करते हैं, और वो इस वजह से ज़्यादा करते हैं बिकॉज इट इन्हांसेस है। बैकग्राउंड ब्लू होगा, वो होगी ऑरेंज होगी, ब्लू ऑरेंज। इसकी वजह ये है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, और जब एक ब्लू कलर होता है तो उसके ऊपर ऑरेंज कलर ऑटोमेटिकली जो है ना वो पॉप करके बाहर आता है। सो विच इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई जब आप इसको यहाँ पे देख रहे हैं तो मैं पॉप कर रहा हूँ मेरे दुबई स्टूडियो में, द बैकग्राउंड इज़ लार्जली वाइट एंड देन देयर इज़ एन ऑरेंज लाइट, तो इसकी वजह से मैं आई डू गेट डिसॉल्व्ड, बट आई डू थिंक लाइटिंग इज़ नॉट दैट गुड, जो कि इसकी लाइटिंग जो है वो आई एम गोइंग टू ट्राई टू एम्यूलेट दैट ओवर देयर, बट एनीवेज it should be 11:30, 10:30. Yes, 10:30 is much better. 10:30, 10:30, 10:30, 11:30, 11 to 12, 10, 11:30, 11:30, 10:30. Mixed लग रहा है थोड़ा सा। मे बी दरमियान का रास्ता 11 o'clock would be good, ताकि लोगों को 12 बजे वो कट ऑफ हो जाए और उनको लगे कि वो आज की तारीख में ही फारिग हो गए हैं, बजाय इसके कि वो अगले उसमें जाएँ। Nice insightful video for your viewer. I've seen it through it, but I really applaud you for awareness about it. Majority of people don't know about it. ये नितेश सिंह साहब, thank you for that comment. I believe you are mentioning about the Russian president video. Yes, I think it's phenomenal. I think a lot more people need to listen to it and hear about it. 10:30, 11:30. Start a poll on time. I don't know if I can do polls here. I do not think I can do polls here. इतने मैं पैसे दे रहा हूँ यार इस उसके। What is this? अच्छा खैर, anyways, but in the world of how to get good sponsors on Instagram profile of 20K, अच्छा हम इसके ऊपर आते हैं, एक सेकंड में ज़रा ना क्विकली गो थ्रू कर लूँगा जो दूसरा है में। but in the world of our education is not at par level, सारा रटा सिस्टम। खैर, ये हम एजुकेशन की बात पे बहक गए। we're going to come back now to our topic of the day, which is this. Okay. अच्छा जी, अब जो दरमियान में जितने भी कमेंट्स हैं, आई एम गोइंग टू बाईपास देम। प्रवेश कुमार साहब कह रहे हैं, मतलब भाई मेक योर आंसर्स प्रिसाइज एंड शॉर्ट। प्रवेश भाई बोल रहा हूँ मैं, पावेश भाई यार, आई डोंट नो इफ दैट इज़ अ गुड आइडिया। आई थिंक मेरा तो प्रेमिस ऑफ डूइंग अ लाइव वाज दैट आई कैन एक्चुअली स्पीक माई माइंड एंड गिव फुल कॉन्टेक्स्ट। मुझे लगता है कि अगर मैंने शॉर्ट फॉर्मेट का प्रिसाइज करना है तो वो तो शायद बेबी स्क्रिप्टेड कॉन्टेंट वुड बी बेटर। अगेन यू गाइस कैन लेट मी नो व्हाट यू थिंक वेदर द आंसर्स आर टू लॉन्ग, बट आई थिंक कॉन्टेक्स्टफुल कॉन्वर्जेशनल है ना यार। बैठक के ऊपर आप किसी साथ बैठे में चाय पे और आप आके कह रहे हैं कि यार कज़न के साथ बैठे में कज़न अपना कोई ज्ञान दे रहा है, आप उसको बोले यार चुप कर, क्या कर रहा है तू यार, कम बोला कर, ऐसे तो थोड़ा अजीब लगता है। बट अच्छा खैर, मैं आई एम गोना गो डाउन दिस टन ऑफ डिफरेंट वो। आई एम गोना स्टार्ट विद दिस वन।
टेक इनसाइडर साहब का जो कमेंट है ना, उससे आगे वाले कमेंट्स अब मैं पढ़ूंगा. So we're just gonna go through that. And also I feel like let's do a rapid fire sort of a round. So you guys can send a ton of questions and I'm gonna make sure कि मैं quick answers दूँ to all of them. Private CES job in Pakistan versus try CSS. Nobody should do CSS. Nobody should do CSS. Today's day and age, if anyone is telling me that they want to do CSS, they're really stupid. Either they're really stupid और दे वॉन्ट टू डू, उनको ना पावर का शौक है कि गाड़ी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा. कोई पैसा नहीं है. अगर आप तमीज़ से ईमानदारी से काम करेंगे, कोई पैसा नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है. आप कोई इम्पैक्ट नहीं लेकर आ रहे. बाय द टाइम आप इम्पैक्टफुल एज में पहुंचेंगे, आप इतने गंदे सिस्टम को आंखें बंद करके फॉलो करके पहुंचेंगे कि फिर आप भी आदी हो चुके होंगे इस सिस्टम के. डोंट डू CSS. There is a lot more opportunity in the private sector. Trust me, 30 years from now, your private sector friend is going to be much richer, much happier, much healthier, and much more in any aspect, to be very honest. आज की तारीख में CSS करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है. अनलेस आपके दूसरे इंटरेस्ट्स हैं, आपकी बिजनेस फैमिली है और आपको है कि यार कोई चला जाएगा गवर्नमेंट में तो हम कोई गेम शेम डाल लेंगे, वो एक बिल्कुल अलग वो है. बट इफ़ एनी वन इज़ ट्राइंग कि यार मैं कोई करियर बिल्ड करूँगा CSS पे जाके, या मैं ये करूँगा या मैं वो करूँगा, आई डोंट थिंक दे शुड बी डूइंग CSS. Private is definitely much better in my opinion. It's a waste of everyone's time. Assalamualaikum Muzammil bhai, what do you think is a better place if you want to go for a tech career or Web 3.0 considering Middle East and USA? Sir, 110% USA. Obviously, if you have the opportunity, USA is the biggest market in the world. It's going to pay you better. And in terms of work, it's going to be the most cutting edge because that is where the technological innovation at this point in time is being driven. Middle East, jo hai, it's much easier for people to get into. Obviously, Middle East is useful, but Middle East does not offer you passport and or as high a salary as tech jobs in the US would. So if you were to ask me, the honest question would be US versus Middle East. US is definitely the better space to go into. Your thoughts, BScs from virtual university and then MS from abroad or BScs from fast NUST ComSats? Sir, 110% BScs from fast NUST and ComSats if you can get in, क्योंकि आपकी core base जो है वो strong बनेगी. Virtual university is not bad but it's not good either, like it's not the best. There's a जो employability का concept होता है ना कि उसमें से आपको सारी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, वो आपको कुछ बेसिक कर देगी. मेरे हिसाब से virtual university से CS करना is the same as doing it from, let's say, Coursera. You're going to by and large do जो effort है ना skill building की वो आपको खुद करनी पड़ेगी. Again, for someone who's going there, it's not a bad idea. Rather than doing no degree at all, do a degree from virtual university. But you gave me a choice between fast and NUST and ComSats, so I would definitely choose that. बाकी obviously masters जो है वो आप बाहर से कर लें अगर आप करना चाहते हैं, वो आप इधर और में जाके कर सकते हैं, कोई ऐसी big deal नहीं है. Obviously fast NUST और ComSats are much more recognized on a global level, so वो है. Sir, I'm stuck. My freelancing has plateaued. I have hired a boy and he manages all my work. I'm farig. I feel like going back into the market and getting a job, as that's what taught me the most last time. Haider Umar bhai, I would personally not recommend that. What I would do is I would because I know you, so I know a lot of context to you. मैं ये करूँगा आपकी जगह कि मैं इस वक्त जो है ना, अगर मैंने जो फ्रीलांसिंग मैं कर रहा था उस फ्रीलांसिंग को रादर मैं जॉब में मोनेटाइज करूँ, आपने जॉब से सॉफ्ट स्किल्स सीखते हो, टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, इस तरह की चीज़ें सीखते हो, वो आप सीख चुके हो. अब आपको ना अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए. मैं आपकी जगह आऊँगा तो मैं प्रॉबली आई वुड बी टेकिंग अ फ्यू कोर्सेज ड्यूरिंग दिस टाइम एंड सीइंग कि मैं AI में क्या कर सकता हूँ, मैं डेटा साइंस की साइड पे जा सकता हूँ मैं. और ये कोई इतनी बिग डील नहीं है, आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है. आप इसमें 6, 8, 9 महीने लगा करके पर्टिकुलरली समवन ऑफ योर कैलिबर कैन वेरी इजीली गेट इनटू अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स एंड देन एक्सपैंड देयर होराइजन ऑफ फ्रीलांसिंग, पर्टिकुलरली फ्यूचर प्रूफिंग योर फ्रीलांसिंग. सो मैं प्रॉब्ली रेकमेंड करूँगा कि पैसा अगर आपके पास आ रहा है थ्रू समवन एल्स, that's great. Utilize this time to be able to upskill yourself and upgrade yourself rather than कि मैं कहीं और चला जाऊँ और वहाँ से जाके सॉफ्ट स्किल सीखूँ. What is the best career you want to suggest for next 10 years? I don't think this is. I mean, I feel like I don't know why people ask this question, right? I don't know why people want the secret recipe or secret sauce. There is no best career that anyone can suggest for the next 10 years. I know computer scientists, computer scientists is the easiest thing to get a job these days, right? I know computer scientists who are doing poorly and are completely jobless for the last 3 years. I know musicians, I know artists who are making millions right now. I know English majors who have an entire company that they've built.
देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर, एनी एंड एवरीवेयर। वही वाली बात है कि आप उसको किस तरह से करते हैं। ये जो सवाल है ना, इस सवाल का कोर ही गलत है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि अच्छा स्कोप इस डिग्री का घुस जाओ। पेरेंट्स नहीं घुसा देते, यार इंजीनियर बन जाओ। उसको भाई मेरा टेम्परामेंट आर्ट का था तो मैं आर्ट करूँगा ना, मैं इंजीनियरिंग कैसे कर सकता हूँ। सो आई फील लाइक कि this question is flawed to begin with. First of all, there is no best career. The best career is the one that you are most passionate about and you can take full responsibility of, and ownership and responsibility of, rather than waiting for someone like me to give you a best career and then you can then hop onto that train and then push your failures on me if you do end up failing. मज़ीद इसका जवाब है, लेकिन comments बहुत आ रहे हैं, तो we'll move forward. If one wants to go abroad, is going for masters a better option or going for industry is better? Obviously sir, सबसे जो बेहतरीन है अगर मुझे सिर्फ मेरा पर्पस है बाहर जाना, वो है इंडस्ट्री। मास्टर्स आप तब चूज़ करोगे जब आपको होगा कि यार मैं इंडस्ट्री में जा नहीं पा रहा तो मैं मास्टर्स करता हूँ और इस बहाने में बाहर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और मेरा कन्वर्जेंस आसान हो जाएगी। एंड देन द थर्ड थिंग इज़ कि अगर मुझे बाहर जाना है और साथ में ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने बाहर जाके मैंने लेट्स से किया हुआ BBA और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं BBA करके यूरोप में जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो मैं कहता हूँ ठीक है यार मैं क्यों ना मैं बिजनेस एनालिटिक्स का मास्टर्स कर लूँ ताकि मैं एजुकेशन भी थोड़ी सी अपनी कन्वर्ट करके टूवर्ड्स समथिंग मोर एक्शनेबल, समथिंग मोर डिप्लॉयबल ओवर देयर वो कर लूँ और साथ साथ जो है मैं मुझे एक्सेस भी मिल जाए। तो इन दैट केस येस मास्टर्स कर लें, बट ऑब्वियसली इफ़ यू हैव टू चूज़ बिटवीन कि यार मुझे इंडस्ट्री में जॉब मिल रही है तो फिर तो आप पहले इंडस्ट्री में जाएँ, वहाँ जाके अपने आप को थोड़ा टाइम गुजारें, वहाँ पे देखें समझें कि क्या है इकोसिस्टम और क्या कौन सी एरिया आपको मज़ा आ रहा है काम करने में, और फिर उसके बाद मास्टर्स करें। आइडियली मास्टर्स शुडंट बी डन फॉर अ मीन्स टू एन एंड। इट्स अ ग्रेट वे टू अपग्रेड योर सेल्फ एंड इट्स अ ग्रेट टाइम टू रियली focus on the right subjects and learn and grow. But a lot of people in Pakistan particularly वो डिग्री कर रहे होते हैं कि यार वो जो नौकरी मिल जाएगी, बैचलर्स में नहीं मिल रही, मास्टर्स कर लेंगे डिग्री मिल जाएगी, वो फिर आपको ज़्यादा यूटिलिटी देती नहीं है, which is why personally I am always of the opinion कि कोई a lot of kids what they do is they graduate and they immediately go for their masters, but you don't know enough, right? Go to the industry first, जाके धक्के खाएं थोड़े से, देखें क्या आपको पसंद आ रहा है क्या पसंद नहीं आ रहा है, and then choose the right master's degree as well. अरसलान जब्बार साहब कह रहे हैं जी, मुझ भाई don't you think we're ethically lagging behind all other education races because if we found the key corrupt bureaucrat they are all highly educated as well? नहीं अरसलान भाई, ये बहुत आपने रैंडम चीज़ों को कनेक्ट करके कुछ बनाने की कोशिश की है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात, we're not lagging behind all education races, we're not like I'm very critical of Pakistan these days, but this is just factually not true. You know, we have a really poor education system, but it's not the worst in the world. And then दूसरा ये कि ब्यूरोक्रेट्स का से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट पॉलिसी श्योर कि एजुकेशन देना ना देना वो सारा वो गवर्नमेंट पॉलिसी का है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि आई मीन इट्स नॉट ब्यूरोक्रेट पर से, इट इज़ मोर ऑफ आवर ओवरऑल तरजीहात दैट कम्स फ्रॉम द वेरी टॉप, which includes the politician, which includes the bureaucrat, and it has nothing to do with their education. I think they're just too dumb to realize the impact of what this does. I think there is an elite capture जिसमें a lot of these bureaucrats and people and politicians are coming from areas जहाँ पर उनको realization नहीं हो रही कि ये education का crisis कितना बड़ा है और ये किस किस्म की population को breed कर रहा है. It's more a symptom of incompetence than that of corruption. That is my opinion. As a videographer in Pakistan in 2023, almost 2024, what are some of the things I should focus on? And based on your experience in media, what are some of the niches that are unexplored? That's a very interesting question. I think personally, जो आपने specific सवाल पूछा ना on the niches that you need to focus on, again, दोनों same ही सवाल हैं. What are the things I should focus on? What are the niches I should focus on? I think that's an answer that you should be asking to a videographer, because आपने एक ऐसी इंडस्ट्री बोली है जो कि मेरी इंडस्ट्री नहीं है, not a videographer. I'm a digital media person though. If you were a YouTuber, I could probably comment better. Or if you do digital content for other people or otherwise, तो आप उसके अराउंड अगर पूछ रहे हैं तो then I can definitely advise you better as well. But in terms of videographer, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो फिल्म मेकर भी हो सकता है जो कि बिल्कुल मेरी इंडस्ट्री नहीं है, वो वेडिंग फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भी हो सकता है, वो अगेन डिफरेंट स्पेस है. Having said that, I think in terms of YouTube, जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि हाई प्रोडक्शन इज़ नो लॉन्गर अ थिंग,
कि आप कोई बड़े कोई ड्रोन शॉट हो जी, सिनेमाटोग्राफी हो जी, फिल्म इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मीडिया and viral media. What I do see is a rise of decent quality, but better storytelling. Not a lot of people are focusing on यार ये शशके वाला shot, यार ये drone, यार ये वो. Even if you have a mobile phone, an iPhone 15 for example, a well told story is going to perform much better than a well shot story. That's my opinion. Thank you for making podcasts on stocks. That's how I got into it and making money through it. Started at age 20 and now I'm 23 and portfolio is at 10 lakhs. That is amazing, sir. Great to hear. अगर आप मुझे थोड़ा सा ये भी बता सकें कि स्पायरेक साहब, क्या आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ग्लोबल मार्केट्स में कर रहे हैं? सो इट बी नाइस टू सी कि क्या पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट रही है या इज दिस ग्लोबल? Assalamu alaikum. Is it normal to have not figured out and a bit confused at 21? I am an artist and BSIT student. AOA, is it normal to have not figured out and bit confused at 21? अच्छा यार, मैं एक ऑनेस्ट वो करना चाहता हूँ. अगर आप उर्दू में बेहतर कंफर्टेबल होते हैं ना, तो आप उर्दू में लिख दें, मुझे कोई इशू नहीं है. रोमन उर्दू में लिख दें ताकि मुझे कम से कम आपकी थॉट पूरी समझ आए. अगर आप एक्साइटेड होके लिख रहे हैं जल्दी जल्दी, वो भी ना करें. इत्मीनान से पूरी बात इत्मीनान से लिखें, क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज्ड हूँ. इज़ इट नॉर्मल टू हैव नॉट फिगर्ड आउट एंड बिट कंफ्यूज एट 21? नॉट फिगर्ड आउट व्हाट? इट्स नॉट मेंशन्ड हियर. आई डोंट नो अबाउट दिस. तो थोड़ा सा सुकून से चिल होके, मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं. मेरा 26 मिनट्स. How to get sponsors as content creator and how much should a 20k page ask? Yeah, 20k page is a nano influencer right now, and to be honest, the market is really down. 5,000, 8,000, 10,000. I don't know if that is useful money. इसके लिए obviously you can go to Wali. There's a platform. वहाँ से आप जो है वो nano influencer के different gigs आते हैं, वो आप कर सकते हैं. But I personally think कि इस point के ऊपर you shouldn't be looking at getting sponsors. I think you should be. I think पहले तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं बड़े क्रिएटर्स को जानता हूँ, nobody has looked for sponsors. Sponsors come to them. So if sponsors are not coming to you, that means your content hasn't been able to. Just because you have the numbers does not mean that your content is as impactful as you think it is. मेरे एक्सपीरियंस में, you know, the advertisers are actively looking for accounts. And when they see a very very powerful account, they always, or not even a very powerful account, like a very interesting account. मैं बहुत सारे 10-15 हज़ार फॉलोअर्स वाले लोगों को जानता हूँ जिनको स्पॉन्सर्स आना शुरू हो गए. So generally मैं इसमें ये कह नहीं सकता कि this is how you should go looking for sponsors, because generally now when you reach out to someone, they're not going to give you money. Focus on your content, be more valuable, and I think you're definitely going to get some for that. EU has extended GSP plus status for Pakistan till 2027. Great opportunity for entrepreneurs if they can take advantage of it. बिल्कुल ये सही बात बोली है इन्होंने. ये अभी इसके फाइनल, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि जो EU एम्बेसडर टू पाकिस्तान थी, उन्होंने कल ये क्लैरिफिकेशन दी थी. But I think this is still subject to approval from the European Union Parliament, but this is definitely happening. And this is great for Pakistan and Pakistani entrepreneurs, particularly in the geopolitical climate जो इस वक्त ब्रू हो रहा है दुनिया भर में, जहाँ पर चाइना से बहुत सारी इंडस्ट्रीज सैंक्शन होने वाली हैं आने वाले वक्त के अंदर. तो उस केस में अगर आप even something as simple as you're smart enough and realize कि there are certain products that are suddenly going to get lost from the market, so you can reroute a lot of Chinese production through Pakistan and then be able to export. So that's always good. अच्छा जी, ब्रो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? दूसरे आपसे अजीब सवाल पूछा गया जुनैद अकरम की पोस्ट में शाहिद अनवर के रिलेटेड. बिल्कुल जी सर, ये बिल्कुल ऐसा हुआ. शाहिद अनवर के बारे में वो वीडियो आई, उस पर एक साहब ने आके बोला कि जी आपने तो लास्ट ईयर बोला था कि 3 साल बाद ये बंदा इररिलेवेंट होगा, और अब देखें ये किधर और आप किधर, आपको तो कोई जानता भी नहीं है. तो मैंने उनका सिंपल जवाब दिया, मैंने कहा सर साल पहले बोला था कि 3 साल बाद ये बंदा, और मैंने ये भी नहीं बोला था वो इररिलेवेंट होगा, क्योंकि जनरली जब आप गालियाँ देते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो जनरली इट्स वेरी इजी टू स्टे इन द मीडिया. एंड आई पर्सनली हैव नो प्रॉब्लम्स विद पीपल हु स्वेयर और डू व्हाटएवर. इट्स माय कमेंट्री वाज ऑन द फैक्ट दैट
एज अ यंग किड, और मैंने उसकी पॉडकास्ट भी देखी हुई. इज़ अ वेरी स्मार्ट किड एंड वेरी स्मार्ट गाय इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही इज़ डन, एंड इट्स जस्ट द स्टोरी इज़ इनक्रेडिबल. वो बिल्कुल एक सॉर्ट ऑफ लोअर मिडिल इनकम ब्रैकेट से ही इज़ बीन एबल टू मेक इट बिग. नॉट एज बिग एज ही पोर्ट्रेज ऑन कैमरा ऑब्वियसली. वो बहुत सारी, एस्टन मार्टिन जो है वो रेंटेड भी है, और 10 और मसाइल हैं, और अमेरिका में बहुत चीज़ें क्रेडिट पे चलती हैं. बट हैविंग सेड दैट, ही इज़ मेड अ लॉट ऑफ मनी, ही इज़ अ सक्सेस स्टोरी. But right now, because he has immediately gained that success, so he's not realizing the repercussions of what आप अपनी जवानी में जो गालियाँ देते हैं, जो लोगों को अजीब अजीब बातें बोलते हैं. तो उसकी मैंने एक बात बोली थी कि 3 साल बाद वो रिग्रेट करेंगे इस चीज़ को, जब वो जो चस्का है ना वायरलिटी का वो पीक कर चुका होगा, और उसके बाद फिर वो मज़ीद ग्रोथ नहीं आ रही होगी, और वो डिप होना शुरू हो जाएगी. एंड देन द ऑडियंस विल बिगिन टू ग्रो, एंड एक एवोल्यूशन आती है. अगेन टाइम विल टेल. तो मैंने उन भाई को ये बोला, मैंने कहा यार 1 साल हुआ है उस बात को, तो या तो 3 साल गुजर गए होते हैं ना. मेरी प्रोडिक्शन स्टिल स्टैंड्स. एंड जहाँ तक मेरा ताल्लुक है कि आई एम नॉट एनीवेयर, तो आई नेवर सेड एनीथिंग अबाउट माई सेल्फ आइदर. द कॉमेंटरी इज़ नॉट अबाउट कि मैं बेहतर हूँ या वो बेहतर है. वो डेफिनेटली मेरे से बहुत बेहतर है इन टर्म्स ऑफ नोइंग द टारगेट डेमोग्राफिक. द कॉमेंट्री वॉज समथिंग ऑन एंटायरली डिफरेंट. सो एनीवेज, दैट वाज वेरी सिली. डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मेरा ये ख्याल है कि इट्स अ ग्रोइंग स्पेस. इट्स डेफिनेटली अ वेरी रियल थिंग. मोर एंड मोर आई बॉल्स आर कमिंग टुवर्ड्स डिजिटल. मोर एंड मोर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इज कमिंग टुवर्ड्स digital. While it is definitely a growing space, it is also becoming more and more complicated. अभी तक जो है वो बस वो बेसिक लोगों को लग रहा है कि जी SEO SEO और बेसिक से होगा. It is becoming a lot more कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि आपने विजुलाइज करके आपने लोगों को लेकर जाना है कि मैंने सोशल इंजीनियरिंग किस तरह करनी है. वो जो पुराना वक्त था ना कि बस एक बेसिक सी चीज़, हैक्स डाल दो, कीवर्ड्स डाल दो, क्लिक बेट्स डाल दो, आई कैन डू दिस फॉर यू इन 5 days कम. People are beginning to now evolve out of it, and they're becoming much more mature, and they're clicking less and less on this sort of crappy ways of getting the users' attention. तो डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, लेकिन एनीवन गेटिंग इनटू इट नीड्स टू really get their hands dirty, read up a lot about it, take a bunch of courses from a lot of different people just to be able to really understand the ecosystem, which is becoming more and more complex. और AI की दुनिया में वो और भी ज़्यादा complex हो जाएगा as AI is going to begin to automate a lot of the low value skills जिसके ऊपर पाकिस्तानी फ्रीलांसर रिलाई करता होता था अगर वो बाहर काम कर रहा होता था. तो इस चीज़ को ज़रा ख़ास कर मद्देनज़र रखना चाहिए. Then, bhai, what's your thought on the Google Analytics data analytics certification? Is good in Pakistan or not? It's definitely a good certification. ये याद रखें, ये बहुत ज़्यादा गौर से याद रखें कि certifications आपसे कोई नहीं पूछता. Nobody cares about a certification. No company I know is going to hire you or fire you on a basis of a certification. सर्टिफिकेशन की रेस सिर्फ पाकिस्तानियों को है कि यार मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए तो खुदा ही जानते हैं मैं किसको दिखा दूंगा. वरना लोग आपसे ना, अगर आपके पास खासकर आईटी, डेटा एनालिटिक्स, इसमें आपके पास डिग्री ना भी हो ना, आपको अगर आप ये एक इंटरव्यू में जाके ये दिखा दें कि यार मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, स्किल आप दिखा दें, आप हायर हो जाएंगे. हाँ, ये बात ज़रूर है कि सर्टिफिकेट, हैविंग दैट सर्टिफिकेट माइट अलाउ यू टू get a interview. Interviews are the hardest to capture because there are a lot of people applying, and उसमें फिर होता ही है कि वो नॉर्मली कट्स लगा देते हैं. वो कहते हैं यार फास्ट नास्ट GIK के बच्चों को सिर्फ बुलाओ, फिर वो नहीं मिल रहा है. अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने चाहिए सिर्फ इस्लामाबाद एरिया के या लाहौर एरिया के, इस तरह की चीज़ें लगा देते हैं. उसमें मे बी अ सर्टिफिकेशन माइट मेक योर CV एक्साइटिंग, बट वन आफ्टर गेटिंग द इंटरव्यू के दौरान उस सर्टिफिकेट का कोई फ़ायदा नहीं है. सो गूगल की जनरली सर्टिफिकेशन आर गुड if you do them while trying to understand what they're teaching you, and if you're able to learn from them. The certificate is not going to be very useful if it's just a certificate and you don't really understand the fundamentals and are not interested in implementing them. Mudal bhai, what do you think of ACCA and plus doing a course on some basic data analysis, and then which niche can I get into which I am unsure of? What do I think of ACCA? These are very specific questions. But chale, I think ACCA is okay. Whatever, not the most useful thing for the future. I think आप अगर ACCA आज कर रहे हैं तो आपको उसके आगे अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा. आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेशन, CFAs, this, that वो करने पड़ेंगे to be able to eventually grow in the accounting space. But even beyond that,
accounting is evolving very, very rapidly. And so I think a convergence with tech, particularly अगर आप इसमें you can Google stuff के accounting tech, accounting softwares, SAP, this, that, वो certification अगर आप ले लें तो then yes, you'll be very useful. I think standalone ACCA is personally, I feel like it's not that useful. अच्छा जी, I'm going to now switch. I mean, this is, I don't know, I wanted a bit of more. I said this because there are many interesting questions in the live chat. I am looking at questions. I'm going to skim through it. I'm going to skim through questions that I like, actually. What's the best time to shift from a freelancer to agency to earn more money? If you have more work than you can manage, convert to an agency. If you don't have more work than you can manage, that means that you're not using your man hours. Very simple, right? You have, let's say, 60 man hours in a week. You work those 60 hours. You price yourself to a point where आपके 60 आवर्स पूरे हो रहे हों. जैसे 60 आवर्स पूरे होना शुरू हो जाते हैं तो आप अपना प्राइस पॉइंट बढ़ाना शुरू कर दें और देखें कि अगर उस प्राइस पॉइंट को बढ़ाने से आपके 60 आवर्स कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे. अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आप अपनी वैल्यू मेंटेन कर रहे हैं. एक पॉइंट आएगा जब लेट से आप $50 एन आवर ले रहे थे, अब आप $100 ले रहे हैं, लेकिन अब 60 की जगह 40 आवर्स आ रहे हैं, राइट. सो आइदर अब आपके पास वो क्वेश्चन मार्क है कि यार मेरे पास मैं 50 पे वापस चला जाता हूँ और मेरे पास अब 60 के बजाय 200 आवर्स का काम आ रहा है, तो मे बी आई कैन हायर 4 more people like myself and then get all of that work done. I think it should be a very natural evolution. It's बड़ा normal सा है. It's all work hours. मेरा हिसाब से it's work hours. मैंने खुद जो है I was doing work as a freelancer, then eventually I hired a couple of people and eventually I hired more and more and more. वो जो hiring की requirement थी वो आई ही तब थी. मैंने कोई ये नहीं सोचा था कि मैं अब एजेंसी बना के बिजनेस बनाऊंगा. मेरी बड़ी बेसिक सी थी कि यार now I'm getting more work than I can swallow in terms of the work hours, and so if I can get someone to edit stuff for me, I can take 2x amount of work and still be able to deliver on time. Acha ji, we were on career guidance for students to aware them of the possibility of job market. I think career guidance does not exist in Pakistan. I think everybody knows that at this point in time. I also think that the way what we call career guidance is dumb. Like people would give career guidance on कि ये स्कोप है. मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ. मुझे लगता है कि there should be a mix of, definitely a mix of what is working, but also what that child is passionate about, right? So अगर मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई बच्चा कहता है यार मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है, तो करियर काउंसलिंग ये होगी कि वो ये ना बोले कि यार इंग्लिश लैंग्वेज का तो कोई फ्यूचर नहीं है. करियर काउंसलिंग ये होगी कि अच्छा तुम्हारा इंटरेस्ट अगर इंग्लिश लैंग्वेज में, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कौन से ऐसे करियर्स हैं जो कि तुम इवेंचुअली इसमें परस्यू कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आप उसमें, या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आप उसमें जाकर स्क्रिप्ट राइटिंग में जा सकते हैं. आप उसमें स्टोरीज लिख सकते हैं फॉर टीवी शोज, ड्रामाज, फिल्म्स. आप उसमें कंटेंट क्रिएशन में घुस सकते हैं और उसके अंदर घुस के आप जो है वो बहुत सारी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं. आई हैव ऑलवेज वांटेड अ स्क्रिप्ट राइटर. पाकिस्तान में देयर इज अ डर्थ ऑफ स्क्रिप्ट राइटर्स. पाकिस्तान में देयर इज अ टन ऑफ पीपल जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी भी है, लेकिन देयर आर नो स्क्रिप्ट राइटर्स. अब उसकी वजह क्या है, उससे नुकसान क्या है कि इवेंचुअली आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज वाले लोग हैं, लेकिन चूंकि उनको किसी ने बताया ही नहीं कि इवेंचुअली आपने इस जॉब पे लगना है, तो उन्होंने बस इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी. वो नॉवेल्स पढ़ते रहे, नॉवेल्स लिखना सीखा उन्होंने. ओ यार नॉवेल नहीं चल रहा भाई इस दुनिया में. इस टाइम के ऊपर फिल्म्स की स्क्रिप्ट चल रही हैं. सो मे बी वाइल दे वर डूइंग इंग्लिश लैंग्वेज दे कुड हैव ब्रश्ड अप देयर स्किल्स ऑन स्क्रिप्ट राइटिंग. टन्स ऑफ कोर्सेस अवेलेबल ऑनलाइन. कुड हैव यूट्यूब्ड अ बंच ऑफ थिंग्स जिससे वो देख कर लेते कि यार जो राइटर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो क्या कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फिल्म राइटिंग, स्टोरी टेलिंग कैसी होती है, वगैरह वगैरह वगैरह. सो आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल हु आर इवन लिसनिंग इन, आई वुड रेकमेंड आप अपना आइडेंटिफाई करें. जो स्टूडेंट्स हैं आप आइडेंटिफाई करें आप क्या करना चाहते हैं. आपने आइडेंटिफाई कर लिया करना क्या चाहते हैं, ठीक है जी. अब उसकी डिग्री ढूंढने, डिग्री कौन सी, अच्छा जी डिग्री भी ढूंढ ली. अब आप करियर ढूंढने कि यार कौन सा ऐसा नोड है, कौन सा ऐसा बंदा है जो कि मैं देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये बंदा है, आज की दुनिया में एग्जिस्ट करता है, सक्सेसफुल है, पैसे कमा रहा है, और वो क्या काम कर रहा है, और जो मैं डिग्री कर रहा हूँ उसके अंदर कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि उसके काम में यूटिलाइज होता है, और उसको बैक ट्रैक करें तो यू विल बी एबल टू ब्रेक इट डाउन कि एग्जैक्टली आपका पाथवे क्या है. रेस्ट आई फील लाइक यू शुड बी एबल टू डू योरसेल्फ. अच्छा जी, व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू शिफ्ट फ्रॉम अ डिग्री मैटर आफ्टर 10-20 years? नो, इट डज नॉट. Sir, we love how you explain. Please don't shorten your explanations. Thank you, sir. Should we stay in Pakistan or move abroad if we've done law? Should we stay in Pakistan or move abroad? यही जो statement है ना,
इसके ऊपर मैं कहूँगा, इफ़ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टुडे, मूव अब्रॉड. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मूविंग अब्रॉड. देयर इज़ नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग with pursuing better opportunities for yourself. पाकिस्तान में एक अजीब स्टिग्मा है, एक अजीब स्टूपिडिटी है कि हम अपने लोगों को कहते हैं कि यार हम गंदे कुएं में बैठे हैं, तू भी हमारे साथ कुएं में बैठ. ओ भाई, आप जाके चाइना को देखो, आप इंडिया को देखो. चाइना पिछले 30 साल में क्वाड्रपल, क्या उससे बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, उसके बावजूद उनका बंदा बाहर जाता रहा है. इंडिया पिछले 30 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया और उनका बंदा उसके बावजूद बाहर जाता रहा. और फिर इवेंचुअली जो उनका बंदा बाहर गया, उसी ने वापस जाकर आपको बिजनेस भी भेजा. वही सत्या नडेलास बने, वही आपके सारे के सारे बड़ी कंपनीज़ में गए और आज वो इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट स्ट्रेंथ हैं. इस वजह से पाकिस्तान में जो जा सकता है भाई, जो टैक्सी ड्राइवर से लेके बिजनेसमैन से लेके टॉप ऑफ द फूड चेन, जो जा सकता है वो बाहर जाए और रेमिटेंस भेजे तो और भी अच्छा है मुल्क के लिए. बट एट द वेरी लीस्ट वो बाहर जाए और अपना धंधा सोचे. मुल्क को क्या देना है उसने, वो फिगर आउट हो जाएगा. देयर आर इनफ एग्जाम्पल्स अक्रॉस द वर्ल्ड टू प्रूव दैट मुल्क को वन वे और द अदर द एक्सपैट कम्युनिटी विल बेनिफिट. हैविंग सेड दैट, आपका सवाल था कि जी शुड समवन स्टे इन पाकिस्तान और गो अब्रॉड. Yes, and if you have the opportunity, you should definitely go abroad. No questions asked. Is CS for everyone? No, CS is not for everyone. CS के अंदर बहुत ज़्यादा कोर मैथ उसकी कोर में होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर में होती है. ये दो ऐसी चीज़ें जो कि हर किसी का टेम्परामेंट नहीं होता. इट इज़ नॉट एवरी ह्यूमन्स नेचर टू बी गुड एट दीज थिंग्स और टू बी इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स. तो अब चूंकि वो रेस लग गई है कंप्यूटर साइंस की, तो अब बेवकूफ़ों की तरह पूरी कौम कंप्यूटर साइंस के पीछे ना लग जाए. इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि CS is a great space to go into. There is a requirement for more and more and more and more engineers. But if it is not your temperament, you will not be successful in computer science. And I know many people who are not successful in computer science. So CS is not for everyone. You should really go into it if you think you are passionate about it. If not, if you can at least bear it. If you don't like it, don't do it. Even if it's a high payout industry today, it is not going to pay you out in the longer run. What is a good replacement of monthly committee system where this money can be utilized, especially outside advice for housewives? मायरा अमजद ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा. Do you guys know कि कमेटी सिस्टम जो पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है, ये inherently flawed है. The only beneficiary of this committee system are the people who get it. Let's say 12 महीने का committee system है. Let's do a quick thing over here. Excel. अब मैं एक टेंजेंट पे बह गया हूँ तो अब बहुत सारे लोगों के सवालात मिस होंगे. I'm really sorry. But let's do a quick मैं कहता हूँ जी, एक 12 महीने का कमेटी का साइकिल है, ठीक है. हर महीने 1 लाख रुपया इकट्ठा होगा और 10 लोग 10-10 हज़ार देंगे. ये आप जाते हैं 12 पे, और ये 1-1 लाख रुपया जो है ना, जो हर महीने इकट्ठा होता है, वो टोटल 12 लाख रुपया जो है वो किसी बंदे को मिल जाता है. ठीक है, सही मैंने बोला ना? समथिंग लाइक दैट. नहीं, सॉरी, हाँ, 12 लोग 1-1 लाख रुपया हर महीना देते हैं, ठीक है. टोटल 12 लाख रुपया आता है और हर महीने 12 लाख रुपया किसी बंदे को मिलता है. ये सही है, ठीक है. अब जो पर्सन 1 है ना, जो कि, और इसमें ये याद रखें कि आजकल हमारा चल रहा है इस वक्त इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट 24% के ऊपर, ठीक है. अब होता ये है कि जो ये वाले लोग होते हैं ना, ठीक है, जिन्होंने 6 लाख रुपए दिए और इससे पहले इनको 12 लाख रुपए मिल गए, इन लोगों को एक्चुअली डिस्काउंटेड रेट के ऊपर मिल रहा होता है पैसे. दैट बेसिकली मीन्स दे एंड अप मेकिंग मनी देन वो है. और जो नीचे वाले लोग हैं जिन्होंने पैसे पहले दे दिए और उनको आखिर में, जो बेचारा खासकर ये बंदा बेवकूफ़ है ना, जो पैसे पहले दे चुका होता है, इसको 12 लाख रुपए नहीं मिल रहे होते, इसको 12 लाख माइनस 24% मिल रहा होता है, क्योंकि साल में उस पैसे ने 24% अपनी वैल्यू लूज़ की है. तो ये वाला बंदा इनहेरेंटली 24% लूज़ करता है. ये वाला बंदा लेट्स से 22%, ये 20%, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके से वो लूज़ हो रहा था. जो ये वाला बंदा, इतना नहीं होता, ये 24 है तो ये 20 होगा, ये 16 होगा, ये इस तरह होगा, दरमियान में नॉर्मलाइज होगी. ये बंदा 4% मेक करेगा, ये बंदा 8%, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस तरह का एक सॉर्ट ऑफ इसका ब्रेक डाउन बनेगा. बट कमेटी सिस्टम इज जस्ट द बिगेस्ट फ्रॉड एवर. And it's fascinating कि पाकिस्तान में अभी भी चल रहा है, but again that's largely because people don't understand how money works and how money gets devaluated over time and inflation and what वो है. So जो आपका सवाल है पहला, वो ये है कि जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि मंथली कमेटी बहुत बेकार चीज़ है, उसके ऊपर ना जाए. अब आप कह रही हैं कि जी रिप्लेसमेंट, मैं आपकी जगह होऊंगा ना ऑनेस्टली, तो मैं जाऊँगा और जाके मैं कोई अकाउंट खुलवा लूँगा म्यूचुअल फंड्स का,
मीज़ान का खुलवा लूँगा म्यूचुअल फंड्स का, कोई लो रिस्क किस्म का, या मैं जाऊँगा और जाके मैं ऑनेस्टली मैं जाऊँगा बैंक के पास और मैं जाके कहूँगा कि यार मुझे ना वो 24% इन्फ्लेशन है तो 20% के ऊपर मेरा सेविंग्स खोल दें। मैं उसके ऊपर जो है वो कम से कम मेरा पैसा बन नहीं रहा, लेकिन आपने महीने के ₹1,00,000 देना है ना, आप महीने का ₹1,00,000 देते रहें, ठीक है, और आप उसके अंदर 20% आपको साल के आखिर में 1,20,000 मिल जाएगा वापस। 1,20,000 नहीं, मतलब आपने ₹1,00,000 देना है, 12 लाख के ऊपर आपको 24% के ऊपर 20% करके आपको वापस मिल जाएगा। नॉट लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान डू दिस। वो उस पर वो ज़ाहिर है वो इस्लामिक वो आ जाते हैं, ऑल्दो देयर आर अ लॉट ऑफ नाउ बैंक्स हु आर डूइंग शरिया कंप्लाइंट वो एज वेल, जो कि आई थिंक अप टू आपको 18-20% शरिया कंप्लाइंट पे भी मिल रहा है in lieu of rental payments or something like that. But I would not go for committees. I would go for something like that or stocks. I think the easiest for an average housewife is stocks. Find your ask your husband, if you don't know about it, ask your husband to set it up for you. There's lots of material available online. sarmaya.pk पे जाके आप उन लोगों से, उनकी भी पॉडकास्ट वगैरह होती हैं, उनसे भी आप सवाल कर सकती हैं। वो आपको बता देंगे स्टॉक्स में किस तरह घुसना है या म्यूचुअल फंड्स में किस तरह घुसना है। It's not that difficult. What STEM programs are more promoted as Yes. Do you have imposter syndrome while applying for jobs? This keeps me applying from senior software development positions. 110% सर, पूरी ज़िंदगी मुझे वो हुआ है। मुझे imposter syndrome हर लेवल पे हुआ है। मुझे ये लाइव स्टार्ट करने के वक्त imposter syndrome हुआ है। मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात करता हूँ तो मुझे imposter syndrome होता है कि पता नहीं मुझे पता है या मुझे नहीं पता, या मुझे लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। But one of the things that I've learned is normally जब आप जॉब पे अप्लाई करते हैं तो what you tend to do is कि आप कहते हैं कि यार मैं किसी परफेक्ट जॉब पे अप्लाई करूँगा, और मैं अप्लाई करूँगा तो इस होप के साथ करूँगा कि मुझे ये जॉब मिलेगी। मैं जनरली क्या करता हूँ कि मैं ना, आप एक कहीं पे काम कर रहे हैं ना, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, जॉब हो सकती है, प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप अप्लाई करें विद द मेंटालिटी कि मुझे ये नहीं करनी, और उसके बावजूद मैं अप्लाई करूँगा। एंड वॉट दैट डज इज दैट रियली, एंड जस्ट ट्राई टू हैक इट कि यार मैंने करनी तो नहीं है, मैंने ये तो मैं बस खेलूँगा, आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स। मैं ईजी होकर जाऊँगा, ईजी होकर इंटरव्यू दूंगा, ईजी होकर ये फिगर आउट करूँगा। उससे फ़ायदा ये होता है, एक तो आपकी ना एंक्शियसनेस और नर्वसनेस ख़त्म हो जाती है, बिकॉज देयर आर नो स्टेक्स इन्वॉल्व। दूसरा ये कि दैट अलाउज फॉर यू टू रियली, रादर दैन खुद से सेकंड गेसिंग योरसेल्फ, दैट रियली हेल्प्स यू आइडेंटिफाई। आप जाएंगे 3-4 जगहों पे फेलियर्स होंगे, आपको कोई इंटरव्यू ही कहेगा यार झूठ बोल रहे थे, 2 नंबर थे, सही थे, गलत थे, आपको पता लग जाएगा आपकी वीकनेस क्या है। और ये भी हो सकता है कि आप जाएं और जाके अप्लाई करें और आपका वो हो जाए, और मे बी यू डोंट वांट टू गो इनटू दैट जॉब, बट एटलीस्ट नाउ यू नो दैट you are capable of a senior dev position, and then you can apply for your dream job and be confident in applying there. So I think imposter syndrome, everybody goes through it, just some people are better at hiding it than others, I suppose. Oops. Okay. If you started a social media startup today, how would you try and bring on foreign clients, cold emailing, LinkedIn, etc. Social media startup से मुराद, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि डिजिटल मार्केटिंग की आप बात कर रहे हैं या कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। What I would probably do is, there are a bunch of very interesting, I think इसमें होगा, so you'll find a lot of this sort of material online of using AI to build cold call sort of funnels, automated cold call funnels. I think you should look into this. ये बड़ा एक interesting है। Obviously इसमें मतलब बिल्कुल standard cold calling I feel like doesn't work anymore because there is just way too much noise in the space जिसमें everybody is cold calling, so now nobody gets a response because you feel like कि यार ये सारा चूना ही लग रहा है। But personalization I think is a big deal. I personally think कि conferences are very very useful. Jitex हो रहा है अभी अक्टूबर में, and then I believe early next year there's going to be Leap in Saudi Arabia. If anything, ज़्यादा अपने दूर नहीं जाना तो आप दुबई में Jitex और Saudi Arabia में Leap वगैरह जा सकते हैं। I think these are very very useful communication tools जो कि पाकिस्तान में लोग people do not use. Like वो अभी तक डिजिटल के ऊपर बस जी cold calling करें, cold calling is gonna die out sooner than later. जो ज़्यादा चीज़ आपकी इवेंचुअली चलेगी वो ये चलेगी कि आप अपनी, एंड अगेन जाइटेक्स वगैरह तो टेक है। अगर आप लेट्स से आप कह रहे हैं कि यार मैं डिजिटल मार्केटिंग में फोकस कर रहा हूँ या सोशल मीडिया मार्केटिंग में फोकस कर रहा हूँ और मेरा फोकस है लेट्स से रेस्टोरेंट्स में, तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड गो टू अ रेस्टोरेंट कॉन्फ्रेंस इन दुबई. They have all sorts of conferences, right? And they have a lot of people coming in. As a person, when you go in physically and introduce yourselves, tell them कि मैं ये सर्विस कर सकता हूँ at lower cost, there's a much higher chance of conversion. How about a virtual degree from an international university? Look,
I mean, a lot of these questions, like what the premise of this question, if it's rooted against the idea that yaar, I mean, I just feel like the way that we approach education in this country is just so flawed, right? Like we're just, the questions are, the mentality is कि यार मुझे डिग्री, मेरी डिग्री कहाँ से है, मेरी डिग्री कौन सी है? I find that to be fairly flawed, and I haven't seen a lot of successful, truly successful people who thought like that. You should be pursuing education for other reasons. I want to go to FAST because FAST has a stellar computer science program, or because FAST has a lot of extracurricular that is going to really help build my soft skills, or FAST has an excellent placement office and an alumni network. I want to go to LUMS because LUMS offers me a global perspective which may be disconnected in terms of Pakistan, but it will really help me connect myself to any global market. I think the statement कि यार बस मुझे डिग्री, मैं इस जगह से डिग्री कर लूँ तो उसका क्या फ़ायदा है, ये अच्छी डिग्री है बुरी डिग्री है, देयर इज़ नो अच्छी और बुरी डिग्री, देयर इज़ योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. लाइक इसीलिए मैं बड़ा केयरफुली करता हूँ. किसी ने अगर पूछा मुझसे कि यार वर्चुअल यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, अभी तो मैं सुबह शाम ही जवाब देता रहूँगा कि यार वर्चुअल यूनिवर्सिटी अच्छी है बुरी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी सही है या बुरी है. आई मीन किसी के लिए वो अच्छी है, किसी के लिए वो बुरी है. फास्ट किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए बुरी है. I cannot answer these questions for you. Nobody can answer these questions for you. You need to look into your own self. You need to first start with the why. Why am I doing what I'm doing? मतलब 2 मिनट के लिए शीशे के सामने जाएं और कहें यार मेरा मकसद क्या है इस ज़िंदगी का, और मेरा मकसद क्या है इस दुनिया का, और मैं करना क्या चाहता हूँ. पैसा मैं कमा लूँगा. पैसा is a translation of value, and if you do not provide value, you will not make money in the long term. All of these statements, डिग्री ये और कौन सा स्कोप किस करियर में है, ये वैल्यू ड्रिवन नहीं है, ये पैसा ड्रिवन है. हमारे यहाँ मसला ये है, हमारे यहाँ पूरी कौम प्लॉटों के पीछे क्यों लगी? क्योंकि उनको पैसा नज़र आ रहा था, नॉट रियलाइजिंग कि इसमें वैल्यू नहीं है. वैल्यू जहाँ पर नहीं होगी वहाँ पे सस्टेनेबल पैसा बनाना और सस्टेनेबल ग्रोथ इन मनी इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट. सो इफ यू आर यंग एंड यू आर राइट नाउ कंफ्यूज्ड एंड थिंकिंग अबाउट व्हाट यू शुड बी डूइंग, गो लुक फॉर प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड. आई मीन गो आउट देयर एंड सी के यार दुनिया में चलते हुए कौन सा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं. इशारे टूटे हुए, मैं इशारों को सॉल्व करना चाहता हूँ. अच्छा ठीक है, मैं मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर लेता हूँ क्योंकि उससे मैं सीखूंगा कि इशारों को किस तरह फिक्स करना है. मैं देखता हूँ कि लोग लड़ बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है. ठीक है, मैं सोशियोलॉजी पढ़ लेता हूँ, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ लेता हूँ ताकि मैं लोगों को समझूंगा, और लोगों को समझ के मैं रेलिवेंट सोल्यूशंस बिल्ड करके मे बी एक यूट्यूब चैनल बना लूँगा, या ये बना लूँगा या वो बना लूँगा. लुक फॉर अ प्रॉब्लम, ब्रेक दैट प्रॉब्लम डाउन कि क्या किया जा सकता है कि इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है. उस प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई करें कि इस प्रॉब्लम के लिए कौन सी स्किल सेट, कौन सी नॉलेज रिक्वायर्ड है. उस नॉलेज को अंडरस्टैंड करने से आपको आइडेंटिफिकेशन होगी कौन सी डिग्री में वो नॉलेज इम्पार्ट होती है, कौन सी वो जो डिग्री है वो कहाँ कहाँ ऑफ़र होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल ग्रेजुएट्स कहाँ प्रोड्यूस हुए. दैट इज़ वेयर यू शुड बी गोइंग रादर देन द अदर वे अराउंड, लाइक अ हैक to get as a means to an end. उसका means to an end ही रहेगा. But if you want to be a future leader, the questions that I'm seeing here are not questions written by leaders. These are questions by scared people who are too fearful for कि वो fail हो जाएंगे. उनको पूरी ज़िंदगी ये बताया गया है कि यार तुम फेल हो जाओगे, और तुम नालायक, तुम जब फेल हो जाओगे तो पूरी दुनिया तुम पे हंसेगी, और इस फियर के साथ आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील लाइक वी नीड टू कलेक्टिवली रीडिज़ाइन द वे दैट वी परस्यू एंड अप्रोच अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, एंड इट नीड्स टू बी ड्रिवन मोर टूवर्ड्स वैल्यू rather than I'm consistently seeing these very, very short-term, specific, individualistic thoughts. जिसका मैं शायद आंसर दे सकता हूँ, but it is not useful for you. It is definitely not useful for the other audience. And what's going to happen is you're going to ask me a question. I'm going to give you an answer. You're going to take my word for it. You're going to pursue that. You might fail, and eventually you're going to say वो influencer जो था ना वो था ही हरामी, और उसने मुझे गलत
वो किया, हालांकि आपके साथ के 10 लोग सक्सेसफुल होंगे, लेकिन चूंकि मैंने आपको उस राह पे लगाया तो आप मुझे ब्लेम करेंगे अपने फेलियर्स के लिए, विच इज़ वाई यू शुड डू अ होलिस्टिक एनालिसिस, मेक अप योर ओन माइंड एंड डू वॉट यू फील लाइक डूइंग. Fail at it. You will fail at everything in life, and you will learn from that failure, and then you will get successful. And so have a more nuanced question, I would say. It's like anyways, very Muzammil bhai, what are your thoughts on doing masters from foreign and returning to Pakistan? Are foreign graduates still preferred in the job market? I mean they are on some level. Again ये उसी तरह का सवाल है जिस तरह का मैंने disagree किया है, but चलें, I'll take it. I think if you are spending money or even getting a scholarship and going abroad and getting that education, I think you should, if you have the opportunity, you should stay there. Because जो आपने एजुकेशन ली है उससे आप ज़्यादा वैल्यू जनरेट कर सकते हैं इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी. आप पाकिस्तान आएंगे तो आप एक कंजम्पशन इकोनॉमी का पार्ट बन के आप बस पैसा जो घूम रहा है ना उसमें से कुछ पैसा अपनी तरफ रख रहे होंगे, एंड इट्स नेवर गोना बी इनफ. आई थिंक यू शुड स्टे देयर एंड आई थिंक यू शुड एज अ वे टू गिव बैक, if you're making good money, you can maybe fund a couple of kids' education locally. मैं एक अगर मैं कर सकूँ, there is one that I generally support myself and I would recommend अगर overseas Pakistanis or generally people who are looking to give back वो देना चाहते हैं. TCF is a great foundation, it's a great organization. They have tons of schools across Pakistan. I've visited a bunch of them, literally beacon house level schools हैं. They're producing quality graduates and the most अंडर डेवलप्ड स्पेसेस, जहाँ पर बिल्कुल समझ लें कि बॉटम ऑफ द फूड चेन जो सोसाइटी की है, जो कि बमुश्किल 10-15-20 हज़ार रुपये में काम कर रही है, उनके बच्चे तो स्कूल जा ही नहीं सकते, उनको वो क्वालिटी के एजुकेशन दे रहे हैं. मैं पर्सनली आई हैव बीन इन्वेस्टेड इन दिस. माई फैमिली हैज़ वेरी एग्रेसिवली collected money and donated for this. My parents have built an entire campus for them as well. So this is not to brag, this is just to say that it's legit and it's very legit and they do very quality work. अच्छा, इनका है ये कि ये है ways to donate. If you go here, एक तो you can donate through online checks वगैरह वगैरह. आप ऑनेस्टली इस पर रिकरिंग भी डाल सकते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड डाल दें और कहें कि जी हर महीने 1200 रुपया काट दिया करो, तो वो डाल देगा. बट जो मैं दिखाना चाह रहा था एक्चुअली, इनका एक वो होता था, give me a minute. हाँ, एक बच्चे को पढ़ाने की कॉस्ट एक महीने की 2700 रुपये, यानी कि एक बच्चे को अगर आप 2700 रुपये ना, आई एम श्योर आप लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जितने रुपए भी कमा रहे हैं, ठीक है, 100 बंदा यहाँ पे देख रहा है, 100 बंदा अगर आज 2700 रुपये महीने का, 2 हार्डीज़ के बर्गर्स भी नहीं है, एक हार्डीज़ का मील अब 2000 रुपये का हो गया, 2700 रुपया महीने का इस पर डोनेशन लगा दे ऑटो, ठीक है, तो 100 बच्चे पाकिस्तान में कल से स्कूल ज़्यादा जाना शुरू हो जाएंगे. आई थिंक दैट इज़ फिनोमिनल. I think it's something that a lot of us can do to very easily give back to the society. और connecting my original thought, अगर आप बाहर हैं और बाहर जाके जॉब कर रहे हैं और आप लेट से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो मे बी आप $100 भेज दें. दैट मीन्स 30,000 रुपये, दैट मीन्स 10 बच्चे आप महीने के जो हैं वो हाई क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं. तो डेफिनेटली ट्राई TCF, बट इफ़ यू हैव द अपॉर्चुनिटी, स्टे अब्रॉड. Quickly going to skim through. Actually, I'm going to shuffle through all of the questions. और अब मैं नीचे आ गया हूँ. We are at the 59-minute mark and मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं जो है वो क्विकली इसको प्रॉम्प्टली 12 बजे 12:30 अभी तो बज रहे हैं, बट 1 घंटे में मैं ख़त्म कर दूँगा. आई एम गोना टेक दिस लास्ट 5 मिनट्स, मैं इसको मज़ीद एक्सटेंड करता हूँ. जो सवालात हैं वो अब हम पॉज कर रहे हैं मज़ीद. Might just do it. I think disconnect हुआ था. We might just continue this later on another day.
थोड़ी सी जनरल बात कर लेते हैं ख़वातीनो हज़रात। पहले तो मुझे ये बताएं, मैं आपसे थोड़ा सा अब पर्सनल इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। 3-4-5 एपिसोड्स गुजर चुकी हैं, क्या ख्याल आते हैं आपके? कैसा जा रहा है? क्या है क्या हाउ डू यू व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस शो? I want you to stop typing and asking questions about what we were talking about. We're past that. We're going to move towards that again in another show. मुझे थोड़ा सा ना पर्सनल आपसे फीडबैक चाहिए। क्या आपको समझ आ रही है? क्या पोटेंशियल है? क्या है? पढ़ी लिखी बात ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? ये जो अब जिस तरह आज मैंने देखा, देखें करियर्स के बारे में बात की, स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात की। आई डोंट नो कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड थे, राइट? सो लास्ट फ्राइडे को वी हैड 170 पीपल ऑन एवरेज वाचिंग। इस टाइम इस बार हम 120-130 पे गए, लेकिन वापस 100 पे ऑलमोस्ट स्टैटिक रहे, विच इज़ फाइन, दैट्स अ गुड ऑडियंस। बट आई एम नॉट श्योर कि किस तरह अच्छा ये लोगों को लग रहा है फॉर्मेटिंग। दूसरा ये कि एक चीज़ मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ पर्सनली। अभी जो फॉर्मेटिंग है ना, जो question and answer, I'm not sure if this as a 1 hour medium is useful or interesting. मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि पता नहीं लोग इंटरेस्टेड भी हैं, वो कह रहे हैं यार ये क्या सवाल जवाब दे जा रहा है। तो मे बी देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर कंपोनेंट जिसमें मैं शायद आधा घंटा रैंडम आऊँ, आगे पीछे की बातें करूँ, एंड देन वी कैन डू जो यू नो वी कैन गेट इनटू क्वेश्चन एंड आंसर। आई डोंट नो, बट मैं ये भी देख रहा हूँ कि क्वेश्चन इतने सारे आ जाते हैं कि उसमें फिर डिफिकल्ट हो जाता है टू बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ देम। वन थिंग दैट आई एम गोना डू इज आई एम गोना इंटीग्रेट अ मॉडरेटर वेरी वेरी सून। आई हैव एक्चुअली टॉक टू समवन अबाउट इट, एंड आई एम गोइंग टू, इवन दो आई विल बी गोइंग थ्रू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस जो मतलब मेरे इनसाइट से गुजर रहे होंगे, बट व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोइंग टू हैव दैट मॉडरेटर टाइम मी, राइट? सो ही इज़ गोना गिव मी लाइक ऐसा करे कि वो 30 सेकंड्स का टाइमर लगा दे साथ, और फिर वो मुझे सवाल स्क्रीन पे फेंके, मैं सवाल पढ़ूँ और 30 सेकंड में जो उसका जवाब बनता है वो दूँ और आगे निकल जाऊँ, ताकि दिस इज़ लॉट मोर। अच्छा जी, थोड़ा सा फीडबैक पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान में क्या? अच्छा सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो और ब्लरी भी है। थैंक यू सर, आई लव लिसनिंग टू यू। आई एंजॉयड द लास्ट फ्यू एपिसोड्स, टुडेज wasn't as good due to lack of good questions. Kaval, that is, I know, I'm sorry for saying this, but I expected the questions, the quality of questions to be a little higher, because these are very basic questions, right? These are जो कि आप किसी भी रैंडम उससे पूछ सकते हैं। तो I don't know, मैं तो थोड़ा सा वो मुझे भी थोड़ा सा इसके बारे में वो हुआ था, बट आई डोंट नो इससे कोई वैल्यू दी है, किसी को वैल्यू मिली नहीं मिली। Just talk about anything. Therapy for me, enjoying it so far. Very insightful. Gum hour was very entertaining as well. Enjoyed that the most. Today sounded a bit more like a formal podcast. Sir, honestly, daily I am learning something new. Earlier it's related to me, but not that I am learning. Today was a great day. As you get specific, Padhi Likhi Baat is more beneficial and only course to audience sticks to it. Today's Baithak was not very chill, but the rest were very fun and enjoyable. 1 hour is enough. I think it's great, doing great. Honestly, don't go with question and answer. More than 1 hour will be hectic for us to listen. First episode was my favorite. You just talking is therapy. I'd say a mixture of serious and light-hearted topic is fantastic. Plus, I'm already out of student life, so this topic wasn't the best for me and would suggest to skip the questions that aren't worth discussions. These sessions help me go for my reel and TikTok addiction tendencies. Sir, actually, live means a two-way communication, so we want questions and answers. Amazing and insightful. Like we thought to vlog mein bhi sun lenge. Views on fire. Throwing in a question, maybe it's basic, but I'm not good at financial literacy. कम ले लें सवाल, but complete answer करें. No need for 30-second time pressure. Okay. Through this session, might be we will increase our level that you are expecting. Enjoying at peak. Do share your learnings with us. Sounds like RJ of radio. Keep going. Raw and original in university. How to increase soft skills. Continue your daily video journaling. Okay. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम रीडिंग ऑल ऑफ दीज, एक तो आई थिंक पीपल डिड अप्रिशिएट द वीडियो जर्नल. वेरी फ्यू पीपल हैव वॉच्ड इट, बट जिन्होंने मतलब आई थिंक आई एम गोइंग टू गो बैक टू इट एंड बी मोर रेगुलर देयर. जो I think one thing that I am going to do is I'm going to do a 50-50. So I'm not going to start with questions in the start. I think I'm going to do like all sorts of random bakwas in the first 30 minutes, and then maybe we can take questions. And दरमियान में अगर कुछ अच्छा commentary आती है तो maybe we can take them up. But I feel like आज का you're right. A few people who mentioned that were right. I would like this to be a lot more random bakwas than the serious
करियर में क्या करना है। आज मैंने टेस्टर मारा था और सच्ची बात है मुझे इतना मज़ा नहीं आया। आई फील लाइक कि ये जो पढ़ी लिखी बातें हैं और ये जो यूज़फुल चीज़ें हैं ये मैं पॉडकास्ट में भी कर सकता हूँ एंड आई थिंक इट्स नॉट वेरी वेरी यूज़फुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द अदर हैंड, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो आप में से मतलब लिटरली ना आप लोग अगर आपस में एक दूसरे से बात कर लेते ना तो आपको बड़े अच्छे आंसर्स मिल जाते। ये चीज़ें आई थिंक काफ़ी हद तक फोरम्स और इन चीज़ों में मिल जाती हैं। मेरे एक्सपीरियंस से मेरी थॉट्स के ऊपर बहुत सारी और चीज़ें आ सकती हैं। तो आई थिंक I am gravitating towards random bakwas more, and I think I will move towards that. Personally, आज मैं थोड़ा सा again I will come back to the original video that I saw. I got into that video start में the one जो Russian president की थी, और वो बड़ी मतलब I don't know यार, मेरी honest thought आजकल पता है क्या है? There are things happening in the world, things that are in front of us, things that you can see online, things that I am going through, and those things are going to completely change everything. Like मैंने ना 2 साल पहले जब कोविड हुआ था पाकिस्तान में, लॉकडाउन मार्च में हुआ था, तो मैंने तकरीबन ना जून जुलाई में ना मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी, मेरे इंस्टाग्राम पे आज तक पड़ी हुई हैं, और मैंने उसमें बताया था कि यार ये इस तरह ना ये शट डाउन हो गया तो प्रोडक्शन रुकी है, बहुत सारा कैपिटल जो है वो मनी जो है वो मार्केट में पंप हुआ है अमेरिका का, जिसकी और बाकी कंट्रीज़ भी कर रही हैं, तो आप कुछ भी पढ़ लें इन्फ्लेशन आएगी। ये एक बेसिक सा असूल है, आपको नज़र आ रहा है सामने, इन्फ्लेशन आएगी। वो वीडियो आज ही पढ़िए, जाके देख लें। उस टाइम पे भी मैं ये बात बोली थी, मुझे लोगों ने आगे 4 गालियाँ दी थी कि पागल है तू, क्या कर रहा है, कोई ऐसा नहीं होगा, फियर मंगरिंग, फियर सेल्स, सो यू आर ट्राइंग टू सेल फियर। उसके बाद पे लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने बहुत कॉम्प्रहेंसिवली पाकिस्तान स्पेसिफिक बताया था कि ये इस तरह हो रहा है और उसकी एक जियो पोलिटिकल और ग्लोबल रिपरकशंस हैं। देयर इज़ अ वॉर बिटवीन 2 वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ आइडियाज़ एंड वो वॉर जो है वही पाकिस्तान में भी अप्लाई हुई भी है, और उसकी वजह से देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आर गोइंग टू अफेक्ट पाकिस्तान इन द कमिंग ईयर्स, एंड वो चीज़ अगर लोग समझ लें तो दे कैन मेक बेटर डिसीजंस। बट व्हेन आई सेड दैट एज़ वेल, तो मुझे लोगों ने आके बोला कि यार तू पागल है। तो अब होता ये है कि अब मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पढ़ता हूँ, मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता। आज जो मैंने ये वीडियो देखी, मैंने आप लोग क्योंकि थोड़े मेरे पढ़े लिखे कॉन्फिडेंट ग्रुप हैं तो मैंने उसमें शेयर कर दी, बट दैट रियली ब्रॉट मी डाउन राइट बिफोर द लाइव स्टार्टेड, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड वी लिविंग in a weird world, and this decade is going to be tough, it's going to be difficult, and it's going to be confusing, and it's going to be for everyone. There's not a lot that you can say जिसमें जो है ना वो जो पुराने आइडियल्स हैं, जो पुराने डेटा सेट्स हैं ना, दे आर गोइंग टू स्टार्ट टू गेट प्रूवन रॉन्ग वेरी वेरी क्विकली, एंड सो दैट ब्रॉट मी डाउन। आई एम सॉरी जिन लोगों ने बोला कि आज की जो लाइव है वो इतनी वो नहीं थी इंजॉयबल इन द सेंस कि रैंडम बकवास ज़्यादा नहीं थी। दैट इज़ द रीज़न वाई आज थोड़ा सा मैं स्टार्ट ही डाउनर्स में हुआ था। But anyways, thank you for all the feedback. This is interesting. I think these Baithak sessions should be more related to discussing soft topics such as family, relationship, family आपने 2 दफ़ा बोला है, इसका मतलब है फैमिली बहुत ज़्यादा हमें डिस्कस करनी चाहिए, and Sufism, etc. Yes, I think that is excellent feedback, and I definitely acknowledge that, and I will try to gravitate more towards that. मुझे भी उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था। But anyways, this is SMHZ. You were watching SMHZ Baithak. This was the 6th of October 2023. I will see you on Monday. Someone on Instagram messaged me and said, what is SMHZ? So I thought I'll just mention it here. It is Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. That is the acronym for, SMHZ जो है वो acronym for Sayyid Muzammil Hassan Zaidi है. दूसरा, for people who are watching, a lot of people do message me asking me कि सर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आती. उसका एक बड़ा बेसिक सा असूल है कि आप जाएं और जाके YouTube के ऊपर, so for example मैं आपको दिखा देता हूँ.
ये है जी स्काई न्यूज़। इसमें मैंने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करके मेरे पास ये ऑप्शंस आ गई, तो उस पर ऑल कर दें, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये है कि जब हम जाते हैं और जाके हमारा ये सिलेक्ट हुआ होता है, हम इसको ऑल करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑल के ऊपर कहता है कि दिस चैनल इज़ मेड फॉर किड्स एंड डज नॉट अलाउ नोटिफिकेशंस। ये एक बग है। इसका तरीका ये है कि आप जाएँ, अनसब्सक्राइब पे क्लिक करें और फिर वापस सब्सक्राइब करें, और फिर जब आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएंगी। एनीवेज, सो आई जस्ट थॉट कि मैं ये पब्लिक सर्विस मैसेज दे दूँ। विच हेडफोन्स आर यू यूजिंग? दीज आर G433 Asus, आई थिंक, आई डोंट नो, द सम रैंडो ब्रांड। सोनी के मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं वो XM लूँ, सच्ची बात है, क्योंकि हमने ऑफिस के लिए 10, 12, 15 लेने थे, वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाने थे। Anyways, what were you talking about? Salma Jivani, you can, I think you joined in late. You can go back and check that out. Abdul Samad, what are your thoughts about the current headlines of dollar replacement and weakening of USA economy? How it will impact the aspiring entrepreneurs who want to do a startup in the USA? Again, this is a topic I feel like I really want to do a detailed live on this, because I have very strong opinions. I think the dollar replacement is going to happen sooner than later, and I think what's happening in Russia and Ukraine right now is a step towards that. कल अगेन वो पुतिन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, उन्होंने कहा जी ये हमारा ना टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है, ना ये हमारा कोई और कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है एक ग्लोबल हेजेमनी जो एग्जिस्ट करती है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ और पर्टिकुलरली वेस्ट वर्सेस ईस्ट की, उसको तबाह करने के लिए है। और बड़ी इंसाइटफुल बात की उसने। और उसके बैकड्रॉप में वो जो जंग है, वही जंग अफ्रीका में भी लड़ी जा रही है, वही जंग चाइना की ट्रेड वॉर में भी लड़ी जा रही है, वही जंग इन अ लॉट ऑफ वेज़ इंडिया में लड़ी जा रही है। चाहे हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर 10 बातें बोलें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन रियल पॉलिटिक्स ह्यूमन राइट्स इज़ अ टूल दैट यू यूज़ फॉर योर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। एंड सो लार्जली जो इंडिया के साथ अभी हो रहा है वो वुड हैव बीन ब्रश्ड अंडर द कार्पेट, बट वो जाहिर है कि इंडिया जो है वो थोड़ा सा दरमियान में अभी भी शेकी है, वो रशिया के भी बेस्ट फ्रेंड्स में है, और वो है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि वेस्ट इज़ ट्राइंग टू शो इंडिया कि भाई आइदर यूर विद अस और अगेंस्ट अस, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया था। एंड थैंकफुली इंडिया हैज़ एज अ नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट जो कि उसको थोड़ा सा पुश बैक दे रही है। आई फाइंड दैट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन इट माइट बी hurtful for India in the longer run, but at the very least overall global context के अंदर I found it very interesting कि इंडिया ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। बट हाँ, खैर, मोइज़ अहमद भाई, मैंने आपको बोला था कि डिस्कॉर्ड का सर्वर आएगा 1 महीना ऑफ डूइंग दिस सस्टेनेबली के बाद। सो पहला मेरा स्टेप ये है कि जी मैं मंडे वेंसडे फ्राइडे को रात के 11 बजे आके बैठ जाऊँ, इतना मैं कर लूँ, क्योंकि एवरी टाइम आई एम अबाउट टू डू द लाइव, आई एम लाइक यार क्यों मैंने कमिट कर दिया, क्योंकि मैं हूँ इस तरह का, मैं लेज़ी सा हूँ, मैं चीज़ें मेरी जो आ जाती हैं वो मैं रैंडमली ना कमिट कर देता हूँ और उसके बाद मैं कर नहीं पाता। कंसिस्टेंसी का मेरा बड़ा मसला है। तो मैंने अपने आप को ये टारगेट दिया कि यार कम से कम हफ्ते में 3 का मतलब ये 12 दफ़ा इसको महीने में करो। अगर मैंने वो कर लिया तब मैं डिस्कॉर्ड करूँगा एंड इंशाल्लाह विल मूव टुवर्ड्स दैट एज़ वेल। बट एनीवेज, अब मेरा थोड़ा मैं ईज़ हुआ हूँ तो मेरा दिल कर रहा था मैं ज़्यादा रुकूँ, बट आई एम गोइंग टू रैप दिस अप। दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी, यू आर वॉचिंग SMHZ Baithak। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट ऑन मंडे।